Hello and welcome again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. गुड इवनिंग, आदाब। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अभी जस्ट 9:14 पे एक अर्थक्वेक जे.एंड.के में हुआ है। इसमें नुकसान क्या हुआ है, कहाँ पे क्या क्या हुआ है, उसका तो अभी कोई पता नहीं है, बट कहीं कहीं जगह पे झटके महसूस हुए हैं। अभी हम जोड़ने जा रहे हैं इमरान साहब को नॉर्थ कश्मीर से। अभी थोड़ी देर तक वो लाइव आ जाएंगे हमारे साथ, उनके साथ हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसा महसूस हुआ। ये रेक्टर स्केल पे 3.9 का भूचाल था। तो जे.एंड.के में बहुत सारी जगहों पे एज पर रिपोर्ट्स की इसका महसूस हुआ कि भूचाल हुआ है। इमरान साहब अभी लाइन पे आ जाएंगे। तो कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे ये महसूस हुआ है, अगर कोई कैमरे पे आना चाहता है तो वो अपने इलाके के हालात का बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसा महसूस हुआ। यहाँ पे मुझे भट्ट फैज़ान जी वॉच कर रहे हैं। हाय फैज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद इमरान साहब को हम ऐड कर लेते हैं और नॉर्थ कश्मीर के हालात के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे ये जो भूचाल हुआ है वहाँ पे कैसा महसूस हुआ और कोई नुकसानात के बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो वो भी पता कर सकते हैं। शबीर साहब भी जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। फयाज खांडे साहब, अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब, इमरान साहब को मैं दोबारा से जोड़ने वाला हूँ। जुनेद नायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब आ रहे हैं लाइन पे। एक्चुअली कनेक्टिविटी का इशू है, इसकी वजह से कुछ लोग मान लो अगर जुड़ भी जाते हैं या जुड़ना भी चाहते हैं तो प्रॉब्लम आता है। अभी इमरान साहब आ रहे हैं लाइन पे, तो इनसे हम नॉर्थ कश्मीर का थोड़ा सा जायज़ा ले सकते हैं कि वहाँ पे कैसे हालात हैं, झटका हुआ, महसूस हुआ या नहीं हुआ। एक झटका आया है भूचाल का नॉर्थ, ये पूरे जे.एंड.के में रेक्टर स्केल पे 3.9 का झटका था। इमरान साहब नहीं आ सकते। मैं तो इमरान साहब को तो हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं जोड़ने की। यहाँ तो नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। हाँ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नॉर्थ कश्मीर से जुड़े हुए हैं, सोपोर बारामूला सोपोर से।
جی جی سر، سن یہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آپ یہ جو بھونچال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا 9:14 پہ، اس کے بارے میں جی سر، تھوڑا سا آپ اپڈیٹ دے سکتے ہیں؟ جی بھونچال تو ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، جیسے ہی ارتھ کوئی ہوا ایک جھٹکا سا لگ گیا ہمیں، جی جی تو اس ٹائم بھی ہم محسوس کر رہے تھے ابھی لگ بھگ جیسے ہی جھٹکا لگا، ٹھیک ٹھاک جھٹکا تھا میرے۔ ہاں، عمران صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، ابھی ہم دوبارہ سے ان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ خالد رسول صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب عاشق حسین صاحب السلام علیکم۔ خالد صاحب اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جوڑ لیتا ہوں۔ عمران صاحب کو میں دوبارہ، کیونکہ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اس کے بعد میں خالد صاحب سے بھی اپڈیٹ لیتا ہوں کہ بنے حال میں کیسا محسوس ہوا، وہاں پہ جھٹکا محسوس ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ بھونچال ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی پہلے بھی 2-4 دن پہلے ایک بھونچال آیا تھا، تو عمران صاحب ڈیو ٹو نیٹورک کنیکٹیوٹی پرابلم آ رہا ہے۔ نیٹورک کنیکٹیوٹی ڈیمانڈ تو سبھی کی ہے کہ 4G ریسٹور ہو جائے تاکہ اس چیز کا ہمیں فیس نہ کرنا پڑے۔ نصیر احمد صاحب السلام علیکم، جی ایم بھٹ صاحب السلام علیکم، سعید عمران صاحب، ان کو میں ریپیٹڈلی ٹرائی کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا کنیکٹ ہوئے تھے اینڈ دوبارہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے ہمیں۔ کھانڈے صاحب اگر آپ کیمرے میں آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو موقع دے سکتا ہوں۔ نصیر احمد صاحب، عاشق حسین، خالد صاحب بٹ صاحب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لا سکتا ہوں میں۔ کیونکہ بنچال ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ ہمیں مل جائے کہ کس کس علاقے میں کس طرح کا بنچال تھا۔ وکاس ملک صاحب السلام علیکم۔ ملک صاحب اگر آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں، آپ اگر ریاسی میں اس ٹائم، تو آپ وہاں کا بھی حال بتا سکتے ہیں کہ ریاسی میں کیسے اب یہ محسوس ہو رہا ہے۔ وانی مشتاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق صاحب اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، if you are interested I can connect you۔ یہاں پہ بھٹ صاحب کو میں نے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، بٹ نہیں جڑ پا رہے ہیں ڈیو ٹو نیٹ ورک کنیکٹیوٹی۔ مشتاق صاحب کو میں جوڑ دیتا ہوں، اگر مشتاق صاحب کا نیٹ ورک ٹھیک ہوگا تو ضرور جڑ جائیں گے۔ میر مدثر صاحب کو، یس میر مدثر صاحب کو جوڑ سکتے ہیں۔ پہلے ہم مشتاق صاحب اگر آ جاتے ہیں لائن پہ۔ 4G انشاءاللہ آ جائے گا۔ میر مدثر صاحب کو ہم جوڑ لیں گے۔ میر مدثر، ابھی ہم نے عمران صاحب کو جوڑا تھا نارتھ سے، تو وہ ایز پر عمران صاحب وہاں پہ جھٹکا محسوس ہوا، بٹ نقصان کا تو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ نقصانات کتنے ہوئے ہوں گے اس بنچال کے ساتھ۔ تو ابھی ہم جو یہ ایڈ کر رہے ہیں مدثر صاحب کو، اگر کنیکٹیوٹی ٹھیک رہی تو مدثر صاحب آ جائیں گے لائن پہ۔
वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब। मिल जाएगा मिल जाएगा। मुदस्सिर साहब हमसे कह रहे हैं जी 4G, इंशाल्लाह 4G कोशिश है सभी की, आप सभी की डिमांड होगी तो इंशाल्लाह 4G भी मिल जाएगा। शौकत सौदागर सब भी वॉच कर रहे हैं। ये विकास मलिक साहब, इमरान साहब को दोबारा से हम कोशिश करेंगे, अगर इमरान साहब लाइन पे आ सकते हैं तो। इमरान साहब शायद आपका नेटवर्क वीक है, वहाँ पे आप कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं। रियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। आप अगर कोई कैमरे पे नहीं भी आना चाहता है, अगर अर्थक्वेक हुआ है तो अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक हुआ है फरीद साहब, 9:14 पे हुआ था। तो उसके असरात के बारे में ये डिस्कशन है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, और इस टाइप का अर्थक्वेक था। ज़्यादातर ये नॉर्थ कश्मीर में महसूस हुआ है झटका, बड़ा तेज झटका था। तो तभी मैंने नॉर्थ से ही लड़के को ज्वाइन करा था। इमरान साहब, इमरान साहब नहीं आ रहे हैं, मीर मुदस्सिर साहब भी नहीं आ रहे हैं। तो छोटा सा झटका था, बट नुकसान तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हुआ होगा, क्योंकि एपी सेंटर के आसपास तो नुकसान ऑब्वियसली हो जाता है। यहाँ पे अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या बानिहाल में झटका महसूस हुआ या नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। फ़हीम अली फ़हीम अस्सलाम वालेकुम। आप लिख के भी कह सकते हैं। फारूक चौहान साहब, ये हमारे फारूक चौहान साहब जम्मू से हैं। तो यहाँ पे तो उतना महसूस नहीं हुआ हमें, बट नॉर्थ कश्मीर में जलजले का झटका, अर्थक्वेक का झटका महसूस हुआ है। मुश्ताक साहब का यहाँ पे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मुदस्सिर साहब का भी प्रॉब्लम आ रहा है। एंड हाँ, मेन प्रॉब्लम जो है 2G का है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, आप अगर आना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं अर्थक्वेक के बारे में, कि आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, अगर आप हाल में हैं तो आपको मिला सकता हूँ। शबीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहा है शबीर साहब का, शबीर साहब। उवैस, उवैस, उवैस जी, अगर आप आना चाहते हैं आपको मैं ऐड कर सकता हूँ। आप को मैं ऐड कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि कौन सी जगह से बोल रहे हैं, और आपने अगर महसूस करा है डिक्लाइंड। उवैस जी शायद नेटवर्क कवरेज में नहीं है।
देखें ये जो भूचाल रिपीटेडली हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इंडिकेशन है? विकास साहब को जोड़ना चाहते हैं बट इनका भी नेटवर्क कवरेज नहीं है। इमरान साहब कहाँ चले गए? इमरान साहब, इमरान साहब अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप लाइन पे आ जाइए, बिकॉज आप यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे हैं। फारूक चौहान, फहीम अली, फहीम अली, फहीम अली, फहीम अली जी भी वॉच कर रहे हैं। खान साहब भी वॉच कर रहे हैं। आशिक हुसैन जी भी वॉच कर रहे हैं। फरीद यूसुफ वानी साहब भी वॉच कर रहे हैं। रियाज अहमद शेख साहब भी वॉच कर रहे हैं। शौकत सौदागर साहब भी वॉच कर रहे हैं। आज का ये सेशन जो है, अभी मैंने जस्ट न्यूज़ और जो ही न्यूज़ सुनी कि इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि पता करें हमारे भाई लोग ठीक हैं। तो इससे अच्छा मीडियम कोई हो नहीं सकता है कि जहाँ पे सारी दुनिया जुड़ सकती है और अपने इलाके का हाल बता सकते हैं कि उनके इलाके में महसूस हुआ या कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी का घर तो नहीं गिरा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे मान लीजिए ये कच्चे मकानात भी होते हैं। तो इसलिए इमरान साहब को दोबारा कोशिश में कर लेते हैं, बट शायद इमरान साहब का नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज इतना ही था आज का, कि भूचाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। तो हाँ, मेन प्रॉब्लम है नेटवर्क कनेक्टिविटी का। गुलजार अहमद, गुलजार, अस्सलाम वालेकुम। संदीप रैना जी नमस्कार। अभी एक भूचाल हुआ है। समीर नायक, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक भूचाल हुआ है और भूचाल 9:14 पे हुआ था। तो उसके बारे में ये डिस्कशन चल रहा था कि कहीं कोई मान लो कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई मान लो किसी के मकान में क्रैक्स तो नहीं आ गए या कुछ तो नहीं आ गया। मान लो एवरी वेदर देयर इज एनी ह्यूमन लॉस या कुछ इस तरह का कुछ तो नहीं हुआ है। तो इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन के लिए ये लाइव किया था। इसमें कोई खास ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कशन करना था। और दूसरा सबकी डिमांड तो यही आ रही है कि 4G रेस्टोर होना चाहिए। देखें, अगर मैं अभी भी किसी को जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे लाइव, आ ही नहीं सकता, बिकॉज 4G कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसकी वजह से हम लाइव में हमें प्रॉब्लम आ रही है। आगे 2G नेटवर्क चल रहे हैं मोबाइल्स के, और ये जो लाइव में कर रहा हूँ ये मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो मेरा तो यहाँ से ठीक चल रहा है, नेटवर्क तो ठीक है मेरा, बट अगले आगे जो है उनका नेटवर्क का कवरेज का प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों में से कोई कमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कैसे हालात हैं, किसी ने झटका महसूस करा या नहीं करा। कुछ हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें महसूस भी नहीं हुआ। तो ये उतना बड़ा अर्थक्वेक भी नहीं था, छोटा मोटा अर्थक्वेक था। छोटा भी नहीं था तो, बट 3.9 का रिक्टर स्केल पे इसको मापा गया।
تو یہ ارتھ کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے تھے. منظور وانی صاحب السلام علیکم. وانی صاحب آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو برنگ کرتا ہوں اپنے کیمرے میں. آپ نے اگر محسوس کیا ہے ارتھ کویک کو تو آپ بول سکتے ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے, ان کیس آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ بول دیجیے گا. تو ابھی ویٹ کرتے ہیں. میں نے ریکویسٹ تو بھیجی ہے, ایڈ کرنے جا رہا ہوں وانی صاحب کو. اگر انہوں نے محسوس کرا ہے تو یہ بتائیں گے کہ نہیں. دیکھو اگین پرابلم یہی آ رہا ہے نیٹ ورک کا. تو ڈیمانڈ سبھی کی ہے کہ 4G ریسٹور ہو جانا چاہیے, اور امید ہے کہ ود ان فیو ڈیز, کیونکہ ایز پر گورنمنٹ آرڈر جو بھی ایل جی صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ود ان ڈیز ہم بہت جلد, کیونکہ بہت جلد ورڈ تو ہم بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں, لاسٹ ایئر سے سنتے آ رہے ہیں 4G نیٹ ورک کے بارے میں کہ بہت جلد چلے گا, بہت جلد چلے گا. مگر اس بار اگر ایشورنس دی ہے ہمارے ایل جی صاحب نے کہ بہت جلد یہ 4G ریسٹور ہو جائے گا, تو دیٹ مینس کہ ود ان فیو ڈیز 26 یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ایسے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 26 تک یہ میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ہم 1 سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب 4G ہر ایک کے موبائل پہ چلے گا. تو پھر ایسی چیزیں پاسبل بھی ہو سکتی ہیں جو ہم لائیو کوریج کرنا چاہتے ہیں. جیسے اس وقت میں لائیو لانا چاہتا تھا, کوئی ناگہانی آفات آ جاتے ہیں, جیسے سیلاب آ جائے یا کوئی بنچال آ جائے, سونامی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو اس ٹائم پہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پیچھے کووڈ-19 نے جو پینڈیمک آیا تھا, پوری دنیا میں آیا تھا, اس ٹائم ہمیں 4G کی کنیکٹیوٹی کی ضرورت تھی, کیونکہ لوگ گھروں میں تھے, سارے گھروں میں تھے. تو پرابلم یہ تھا کہ کنیکٹیوٹی بہت آہستہ آہستہ موبائل چلتے تھے, تو گھروں میں بھی تھے, تو کم سے کم اگر موبائل چل جاتے, کنیکٹیوٹی اچھا ہوتا, تو یہ مان لو پینڈیمک والا ٹائم جو لاک ڈاؤن والا پیریڈ تھا وہ بہت اچھی طرح سے سبھی کا گزرتا, کیونکہ آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے, انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو دوبارہ سے میں ایک لاسٹ ٹرائی کر لیتا ہوں اس کا. یہ جو ہے ہمارا عمران صاحب, جنہوں نے کہ نارتھ کشمیر میں ایکچولی یہ محسوس کرا ہوا ہے, شاید نہیں ہے لائن پہ, تو کنیکٹیوٹی کا پرابلم بول رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم یہاں پہ شاید نیٹ سلو ہے. ہاں وہ تو مانتا ہوں کہ نیٹ سلو ہے, تو نیٹ ورک کا پرابلم ہے. تو اسی کے ساتھ ہم یہ آج کا سیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ سے کسی ہستی کے ساتھ ملاقات کرائیں گے آپ کی. ہاں, آنے والے ٹائم میں آپ کو ایک اور بالی ووڈ ایکٹر جو چائلڈ آرٹسٹ بھی رہ چکے ہیں اور ایکٹر بھی, انہوں نے ایز ایکٹر بھی کام کیا ہوا ہے, بہت ساری موویز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ہیں وہ پنجاب سے. تو چائلڈ آرٹسٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر, تو ان سے بھی روبرو کرانے جا رہا ہوں کچھ دنوں کے اندر. تو یہ آج کا بھونچال والا جو ارتھ کویک والا سیشن ابھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو باقی جو ہی ابھی بھی کچھ لوگ جڑ رہے ہیں یا کچھ
देख रहे हैं। तो जो सेलिब्रिटी है, नाम तो मैं उसी टाइम जो ही उसको मैं जोड़ूंगा तो वो उसी टाइम में डिक्लेयर कर लेता हूँ कि कौन सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और जुड़ने जा रहे हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है, वो भी जुड़ने वाले हैं। एक और स्टार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। देखें, ये हम हर किस्म के टॉपिक्स उठाते हैं। कभी कोई इशू होता है, हाईवे का इशू, मान लो जैसे हाईवे ब्लॉक था तो प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो वो इशू हमने उठाया। 4G कनेक्टिविटी का इशू है, वो उठाया। अब हाईवे रेस्टोर हो गया हुआ है ऑलमोस्ट। अब वन वे, देखें, ब्रिज जो है वहां से एक ही गाड़ी पास हो सकती है, तो वन वे ट्रैफिक है। तो अभी भी मैं देख रहा था, जो रिपोर्ट्स मैंने देखी कि जैमिंग इतनी है कि कहने की बात नहीं है। तो अभी भी रिक्वेस्ट है, जो ट्रैवलर्स हैं, कभी घर से निकल जाते हैं ऐसे ही, तो कोशिश करें अभी थोड़ा सा वेट ही करें, क्योंकि जब तक ये फुली रिस्टोर नहीं होता तब तक आप थोड़ा सा गुरेज करें। पहले ये जो बीच में फंसी हुई गाड़ियां वाड़ियां हैं वो निकल जाती हैं, उसके बाद ही आप घर से सफ़र के लिए निकलें। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है, इस पे सफ़र करना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। तो इस पे जब भी ट्रैवल करना हो तो पूरा इंतज़ाम। कहते हैं, मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आ रही है, मंशूर साहब। उनने ये बताया था, नान दर बगल जान दर बगल। तो क्योंकि जब मैं बनहाल से ट्रेवल करता था, बहुत पुरानी बात है, कॉलेज के दौर में, तो मैं हमेशा जो मदर थी वो रोटी साथ दे देती थी। तो रोटी वैसी की वैसी ही जम्मू पहुंच जाती थी, बट हम जब चले जाते थे होटलों होटलों में, तो फिर जम्मू में आके फिर हम वो रोटी छोटी, यार दोस्त लोग जहाँ पे मान लो किसी रूम में होते थे या हॉस्टल हॉस्टल में होते थे, तो वहाँ पे हम वो रोटी खाते थे। तो वो चीज़ का ख्याल रखें। नान दर बगल जान दर बगल वाला जो वर्ड है, मुझे अभी भी याद आ रहा है। मंशूर साहब ने, मेरे उस्ताद रहे हैं, उन्होंने ये, मैं जो ही उन्होंने मेरे बैग में से, मैंने जब रोटी निकाली तो उन्होंने देखा कि इन्होंने रोटी निकाली है, तो उन्होंने कहा, गौहर, ये बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो आप। तो नान दर बगल जान दर बगल। तो वही बात है, जब भी हाईवे पे, आज की डेट में, उन दिनों तो ऐसे हालात नहीं थे हाईवे के, बट आज के हालात वैसे हैं। अगर आपके पास नान दर बगल है तो जान दर बगल है। तो आप अपना इंतज़ाम पहले से ही करें। जो ही हाईवे का सफ़र करना हो तो कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करें खाने के लिए, और उस तरह से आप प्रिपेयर होके चलें कि आपको मे बी दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टॉक अपने साथ भी कैरी करें, ना कि ऐसे ही निकल जाएं कि रास्ते में होटल मिल जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि रोड ब्लॉक हो जाता है, वैसी जगह पे रोड ब्लॉक हो जाता है जहाँ पे आपको पानी तक नहीं मिलता। तो ये आज का हम अभी इख्तिताम पजीर कर लेते हैं। ये जो हमारा लाइव सेशन है, ये एक्चुअली था अर्थक्वेक पे, जो अभी जस्ट 9:14 पे हुआ था। साहिल वोरा जी, गुजरात से, थैंक यू साहिल भाई, आप हमेशा देखते रहते हैं मुझे। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा से रिपीट करता हूँ, साहिल वोरा जी मेरे
خاص دوستوں میں سے ہیں، یہ گجرات سے ہیں، یہ ان کا ممبئی اور گجرات آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ ان کا ریلیشن ممبئی میں ہے، مدر ان کی ممبئی کی ہیں، تو یہ بہت ایک نائس انسان ہے، بہت اچھے لائق قابل انسان ہے، تو یہ ہمیں یہاں تو ممبئی سے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تو گجرات سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ساحل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہی ہائی وے کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہائی وے میں اگر ٹریول کرنا ہے تو آپ اپنے لیے کم سے کم کچھ کیری کریں، کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ جیمنگ بہت ہے اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج مان لیجیے صبح آپ نکلتے ہیں تو کب تک آپ پہنچیں گے، کیونکہ ہائی وے کے حالات ویسے ہی۔ اور دوسرا تھا ارتھ کویک کا، ارتھ کویک شام کو ہوا تھا 9:14 پہ شاید، یس 9:14، اور ریکٹر اسکیل پہ یہ تھا 3.9 کا۔ جھٹکے محسوس ہوئے نارتھ کشمیر میں اور یہاں پہ چناب ویلی میں، جموں میں تو کم ہی محسوس ہوا، بٹ ارتھ کویک ہوا ہے J&K میں۔ تو اسی کے بارے میں ڈسکشن تھا، ڈسکشن کیا میں اکیلا ہی تھا، تھوڑا سا نارتھ کشمیر سے ایک لڑکا جڑ گیا تھا، عمران صاحب، تو وہ ڈیو ٹو 2G کنیکٹیوٹی اوور ہیئر we were unable to connect that person۔ ابھی بھی وہ انہوں نے تو لکھ کے دے دیا کہ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے، بہت ویک یہ نیٹ ورک ہے، ہم جڑ نہیں پا رہے ہیں یا جڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ابھی رات کا ٹائم ہے، صبح اس کے اثرات کا پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہو یا کچھ ہوا ہو۔ تو میری اگین ہر ایک سے اپیل ہے، جو بھی دیکھنے والا ہے، میرے دوست، میرے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو ہر ایک سے اپیل ہے کہ اگر ہائی وے پہ ٹریول کرنا ہے تو اپنے ساتھ کیری ضرور کچھ نہ کچھ کریں، کھانے کا ارینجمنٹ تھوڑا سا اپنے ساتھ کیری کریں۔ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی اپنی اور اپنے استاد جی کی بھی، جو جنہوں نے جب میرے بیگ میں سے روٹی نکلی تو انہوں نے کہا کہ نان در بغل جان در بغل، اٹس ایکچولی فارسی ورڈ ہے کہ روٹی آپ کی ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ مان لو زندگی ساتھ آپ کے ہے، تو فارسی میں انہوں نے یہ شعر بول دیا، نان در بغل جان در بغل۔ تو میں سبھی کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جھیلا ابھی تک میرے لائف کو، کیونکہ لائف جب میں جاتا ہوں تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ بڑی بار مجھے بولا جاتا ہے جی آپ لائف بہت زیادہ دیر تک کرتے ہیں، تو اتنا لمبا لائف جب ہو جائے تو اگلا بھی بور ہو جاتا ہے، زیادہ لمبا لائف نہیں ہونا چاہیے، لمیٹڈ لائف ہونا چاہیے، میں بھی سمجھتا ہوں، بٹ پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ ایشوز آ جاتے ہیں بیچ میں، کوئی آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ ویسے جو بولنے والے ہوتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، سینیٹیشن کا بھی خیال رکھیں، ماسک ابھی لگائے رکھیں کیونکہ ابھی سیکنڈ ویو آ گیا ہوا ہے، تو کمیونٹی اسپریڈ خدا نہ کرے کہ ہو جائے، تو جو یہ سیکنڈ ویو ہے بہت خطرناک، دوبارہ سے پھر وہی ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہم نے پہلے جھیلا ہوا ہے، 1 سال سے جھیل رہے ہیں۔ تو
अभी चीज़ों को लाइटली ना लें। बिलाल अहमद वानी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहमद वानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी चीज़ों को लाइटली ना लें। वैक्सीन आ गया हुआ है, बट वैक्सीन का भी अभी वो जो वैक्सीनेट होंगे वो स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ उनको करेंगे, तो हम तक पहुंचते पहुंचते, कॉमन मैन तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो उस खुश फहमी में कोई ना रहे कि बस आज ही मुझे वैक्सीन मिलेगा या मैं पैसे दे के वैक्सीन लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर गवर्नमेंट करेगी तो सभी को वैक्सीनेट करेगी, और सभी को वैक्सीनेट करने में यहाँ पे पोलियो का अभी तक अभियान खत्म नहीं हो रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन में कितना टाइम लगेगा हमारी कंट्री में। तो इसमें है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंशन करें। अभी मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ इस रूम में, तो अदरवाइज जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मास्क अभी भी पहनता हूँ। सैनिटेशन का ख्याल रखता हूँ, हाथ शाथ धोना, वो ये जो आदतें बना दी हैं पिछले पेंडेमिक ने, जो अभी तक चल रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। तो इसके साथ ही हम ये आज का सेशन ख़त्म कर लेते हैं। तो क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से या तो कोई आगे 4G या ब्रॉडबैंड सर्विस पे बैठा हो तो वहाँ वो कनेक्ट हो सकता है, ऐसे मोबाइल से तो कनेक्ट होने से रहे। बिकॉज अभी मैंने एक लड़के को कनेक्ट करा था तो वो साथ में ही डिस्कनेक्ट हुआ, दो ही बातें हुई तो साथ में डिस्कनेक्ट हुए, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली फेस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स को तो कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, तो उनकी एजुकेशन भी सफ़र कर रही है। तो हमारी हम सब की डिमांड है कि 4G को रेस्टोर किया जाए। खासकर मान लो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं तो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो जाती है तो साथ में 4G चलता है तो स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो घर, अगर घर में बैठना भी पड़ा तो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। आजकल आईटी का ज़माना है। तो इसी के साथ शाहीन कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी भी का नाम नहीं लिया हो तो मुझे माफ़ करें, बिकॉज ये सीडन डोगरा साहब, हाय, इन्होंने सबसे पहले हाय हेलो का मैसेज करा था। तो डोगरा साहब आपका शुक्रिया, आप भी जुड़े। कासिम साहब आप भी जुड़े। फारूक साहब आप भी जुड़े। तो इसी के साथ आज का लाइव हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा। फिर अगर हम बातें करते रहें तो ये बहुत लंबा चला जाता है। तो अपना सेहत का ख्याल रखें और आज के लिए इजाज़त दें। आने वाले टाइम में किसी और हस्ती के साथ मुलाकात कराएंगे आपकी, और कोई और इशू लेके आ जाएंगे।